Hello, good morning, friends. Sorry for the disruption in the previous video. Now we are going to discuss about the embryological derivative. So these are the following structure: ovarian, fallopian tube, uterus, cervix, upper vagina. So the ovary develops from the genital ridge, fallopian tube, uterus, cervix, and upper vagina. They all develop from the Mullerian duct and pyramidonephrine duct. So Mullerian duct, you have to learn that it is Mullerian duct and also known as paramesonephric duct. Then lower vagina from sinovaginal bulb of urogenital sinus and Bartholin gland from the urogenital sinus, which is endodermal in the origin. Then per speculum examination, it is the first one, the derivative is genital ridge, and then the rest of the major structures. The derivative is Mullerian duct and paramesonephric duct, which is mesodermal in origin. While in the case of lower vagina and Bartholin gland, the origin is urogenital sinus. Then we comes to the angle of uterus, round ligament, and uterine artery. Angle of uterus, we have mainly two angles: angle of anteflexion and angle of anteversion. So we have mainly three structures, that is uterus, cervix, and vagina. So the structure that is the angle which is in between the uterus and cervix, it is known as anteflexion, while the angle in between the cervix and vagina, it is known as anteversion. So you can remember like that, it is anteversion. Version means cervix and vagina, and anteflexion means cervix and uterus. So mainly the angle of anteflexion is 120 degree, angle of anteversion is 90 degree. This is angle of anteflexion, this is angle of anteversion. Then it is the table given to differentiate us in between the anteverted uterus and retroverted uterus. So the fundus, mainly uterus has four parts. The fundus, this one is fundus. This is known as fundus. So the fundus is directed toward the pubic symphysis. That is important. In the case of anteverted, this is the most common type of uterus present. So what is the direction of uterine fundus? The direction of uterine fundus is towards the pubic symphysis. While in the case of retroverted uterus, the direction is towards the sacral promontory. This is the difference we have to know. Then part easily felt is fundus. So in the case of anteverted uterus, fundus is felt, while difficult to palpate is cervix. That is we have to learn. But in the case of anteverted uterus, it is anteverted uterus, so we are able to easily felt the fundus. While in the case of retroverted uterus, we are able to feel the cervix. This is the majorly two difference. So we have discussed about that. Mainly in the case of uterus, there are two angles: anteversion, anteflexion. Anteversion is in between cervix and vagina, while anteflexion is in between cervix and uterus. The above angle is about 120 degree and lower one angle is at 90 degree. So we are here going to discuss about what is the difference between anteverted versus retroverted uterus. So in the case of anteverted uterus, so there the direction of uterine fundus is towards the pubic symphysis, while on the other case it is directed towards the sacral promontory. And fundus is easily felt here. In the case of retroverted uterus, cervix is felt. Then next, what is the significance? The anteverted uterus helps to prevent the prolapse and helps to provide the mechanical support to the uterus. Then we have round ligament. I already explained you in the first video that round ligament originate from the cornua of the uterus and anterior 1/3 of the labia majora. I will explain you at the later part, that I want to tell you that part 1, this one part is cornua and labia majora, you know. So the attachment is labia cornua of uterus
and anterior one third of labia majora is the attachment. What is function? Support. It helps to support, keeps the uterus in the anteverted flexion. Then origin is gubernaculum. This is important. We study in the case of testis that while in the case of undescended testis, the main cooling factor are gubernaculum that helps to keep the position of testis inside the scrotum, and the another two factor is hormonal factor, and third one factor is differentiation of abdominal wall. So these are three factor that helps to keep the testis, that helps in the descent of the testis. Then the blood supply for this is Samson's artery. So what is round ligament? Round ligament has mainly two attachments. First one is labia majora and second one is cornua of the uterus. So its function is mainly to keep the uterus in the anteverted position. Third one, the origin is from the gubernaculum. Fourth one, the blood supply is Samson's artery, which is a branch of uterine artery. Then what is uterine artery? Uterine artery is a branch of anterior division of internal iliac artery that we discussed already in the previous classes. So mainly what are the structures which are supplied by the uterine artery? So the structure are uterus, fallopian tube, round ligament, cervix and ureter. Cervix, descending cervical artery, Samson's artery, fallopian tube, medial two-third, and uterus itself and ureter also. Because we will study a phenomenon known as water under bridge. There I will tell about the relation of uterine artery to the ureter. Then there is applied aspect of uterine artery, that is in the case of devascularization in the PPH, postpartum hemorrhage. We have postpartum hemorrhage, that after the pregnancy, if a female bleeds a lot, then what are the ways to prevent the postpartum hemorrhage? So first one is we have to ligate the uterine artery, ligation or devascularization. If it fails, then the second one is ovarian artery. Third one is anterior division of internal iliac artery. So these are the three ways to devascularize in the case of PPH. Then we have vagina not supported by the uterine artery. So uterine artery embolization does not impact the vaginal blood supply. So there will be intact vaginal blood supply. So what are the branches of uterine artery? We have to know about it. That is Trixie is ARBS, ARBS, from outside to inside. U for uterine artery is there, A for arcuate artery, R for radial artery, B for basal artery, S for spiral artery. Spiral artery significance also comes in the case of PIH, that is pregnancy induced hypertension. We will study about spiral artery in details in the case of PIH. And Samson's artery is responsible for menstruation blood. So this is clear. Then we have what is the phenomenon known as water under the bridge. Water under the bridge means uterine artery directly crosses over the ureter. That is uterine artery क्रॉस करती है यूरेटर को 2 सेंटीमीटर लेटर टू द इंटरनल ओस. इंटरनल ओस क्या होता है? इंटरनल ओस वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे यूट्रस और सर्विक्स ओपन होते हैं. तो उसके 2 सेंटीमीटर लेटरली हमारे पास में क्या होता है, जो यूटेराइन आर्टरी होती है वो क्रॉस करती है यूरेटर को. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ यूरेट्रिक इंजरी इज ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टोमी. जब भी हम हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, डेट मीन्स हम यूटेरस को रिमूव कर रहे हैं, तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ यूरेट्रिक इंजरी यही होती है. क्लैम्प अप्लाइड एज क्लोज टू द यूटेरस एज पॉसिबल. इसलिए यहाँ पे इंजरी हो जाती है 2 सेंटीमीटर लेटर टू इंटरनल ओस. इसलिए हम क्या करते हैं कि जो यूटेराइन आर्टरी या यूरेटर होता है उसको हम यूरेटर की इंजरी प्रिवेंट करने के लिए हम उसको यूट्रस के क्लोजली क्लैम्प करते थे, जिसके कारण इन फ्यूचर जब हम हिस्टेरेक्टोमी करें तो यूरेट्रिक इंजरी मिनिमल हो जाए. तो हमने 2 पन्ने पढ़े थे. मेनली हमने पढ़ा था एंगल ऑफ यूट्रस. एक होता है एंटीवर्टेड, एक होता है रेट्रोवर्टेड. एंटीवर्टेड सबसे मोस्ट कॉमन होता है. इसमें क्या होता है, यूटेराइन फंटस का डायरेक्शन टुवर्ड क्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, वाइल अदर केस में टुवर्ड सैक्रल प्रोमोन्ट्री होता है. इसमें कौन सा पार्ट फेल्ट होता है? इसमें फंटस फेल्ट होता है, इसमें सर्विक्स फेल्ट होता है. मेनली एंटीवर्जन क्या होता है, यूट्रस और वेजाइना के बीच में होता है, सर्विक्स और वेजाइना के बीच में होता है. और एंटी फ्लेक्शन सर्विक्स और
यूटेरस के बीच में होता है। ऊपर वाला 120 डिग्री होता है, नीचे वाला 90 डिग्री होता है। सिग्निफिकेंस क्या होता है? प्रोलैप्स को प्रिवेंट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट टू यूट्रस। राउंड लिगामेंट क्या होता है? राउंड लिगामेंट के दो अटैचमेंट होते हैं, एक होता है कॉर्निया ऑफ यूटेरस, एक होता है एंटीरियर 1/3 ऑफ लेबिया मेजोरा। सब फंक्शन क्या होता है? टू कीप द यूटेरस इन द एंटीवर्टेड पोजीशन। ओरिजिन होता है गुबर्निकुलम से। ब्लड सप्लाई होता है सैमसन्स आर्टरी, ब्लड सप्लाई होता है सैमसन्स आर्टरी। यूटेराइन आर्टरी जो कि एक ब्रांच होती है एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल आइलिक आर्टरी की, 5 स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है: यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, राउंड लिगामेंट, सर्विक्स और यूरेटर। मेनली इन द केस ऑफ PPH वी हैव टू devascularize द आर्टरीज. First one is the uterine artery, second one is ovarian artery, then anterior division of internal iliac artery. Then the branches of the uterine artery from outside to inside as follows: erupts. A for arcuate artery, R for radial artery, B for basal artery, S for spiral artery. और एक पॉइंट और अलग से नोट करवा रखा है, जो सैमसन्स आर्टरी होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है मेंस्ट्रुअल ब्लड के लिए। देन वाटर अंडर द ब्रिज क्या होता है कि मेनली यूटेराइन आर्टरी जो होती है वो यूरेटर को डायरेक्टली क्रॉस करती है, जो कि अवर द यूरेटर क्रॉस करती है। मतलब यूटेराइन आर्टरी ऊपर होगी और यूरेटर नीचे होगा। मतलब वाटर, मतलब यूरेटर से क्या पास होता है, हमारी यूरिन पास आउट होती है, मतलब वाटर हो गया, तो वाटर अंडर द ब्रिज। और ब्रिज क्या हो गया? यूटेराइन आर्टरी हो गया। मेनली इसमें क्या होता है? 2 सेंटीमीटर लेटरल टू इंटरनल ओस होता है। यहाँ पे साइट ऑफ इंजरी, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंजरी होती है ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टोमी। इसलिए हम क्या करते हैं? क्लैंप लगा देते हैं और यूरेटर को जो होता है हम कहाँ कर देंगे? पास कर देंगे, यूट्रस के पास ले आएंगे यूरेटर को। क्लैंप अप्लाइड एज क्लोज टू द यूट्रस एज पॉसिबल। देन applied aspect fallopian tube, ovary and uterus. Then we are going to on the step 3. So fallopian tube, the length is almost 10 centimeter. The parts of fallopian tube, it is mainly is having 4 parts from medial to lateral. First one is interstitium, that is seen in the one that is in yellow color. Interstitium also known as intramural part, because some part lies inside the uterus. It is the narrowest part, so known as anatomical sphincter, because it is having circular muscle fiber. It is having circular muscle fiber known as intramural part. It is the narrowest part. And anatomical sphincter, it is known as anatomical sphincter because it is having circular muscle fiber. Then second one is isthmus. This one is isthmus. It is the second narrowest part, and it is known as physiological sphincter because from here first one is interstitium, then isthmus, and then ampulla. So it is narrowest, it is narrow, and it is widest. So it is going from narrow to widest, so leading to, due to which the diameter changes and leading to it acts like a sphincter. So it is physiological sphincter. Site of female fertilization is in the case of female sterilization, that is tubal ligation. We make ligation at the part 2. We make ligation at part 2. That is the isthmus. Third one is ampulla. Ampulla is the widest and longest part. Ampulla is widest and longest part. Site of fertilization and ectopic pregnancy. यहाँ पर ही fertilization होता है और यहाँ पर ही ectopic pregnancy होती है। मतलब जब हमारा ओवा निकलेगा और स्पर्म आएगा तो यहाँ पे फ्यूजन होता है उनका, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी यहाँ पे होती है क्योंकि ये वाइडेस्ट पार्ट होता है। और इसमें म्यूकोसल फोल्ड होती है, जिसे हम कहते हैं प्लाइका। क्या बोलते हैं? प्लाइका बोलते हैं। लास्ट में आता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या होता है? ये फीमेल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब होते हैं। तो मैं एक बार पूरा ब्रीफ कर देता हूँ। पहले फेलोपियन ट्यूब का लेंथ 10 सेंटीमीटर होता है। 4 पार्ट होते हैं मीडियल टू लेटरल। फर्स्ट वन होता है इंटरस्टिशियम, सेकंड वन होता है स्टमस, थर्ड वन होता है एम्पुला, फोर्थ वन होता है इनफंडिबुलम। जो स्टमस होता है वो नेरोएस्ट पार्ट होता है, इसे हम इंट्राम्यूरल पार्ट भी बोलते हैं। इसको एनाटॉमिकल स्फिंक्टर भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर मसल होता है। सेकंड वन होता है स्टमस। स्टमस सेकंड नेरोएस्ट पार्ट होता है। इसको फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर बोलते हैं। क्योंकि ये नेरो होता है और एम्पुला वाइडेस्ट होता है, मतलब छोटे से बड़े में जाएगा, मतलब डायमीटर चेंज होगा, इसलिए हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर। और यहाँ पे एक चीज़ और होती है, साइट ऑफ फीमेल स्टरलाइजेशन भी यही होता है।
थर्ड वन होता है एम्पुला। एम्पुला क्या होता है, वाइडेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट होता है, साइड फॉर फर्टिलाइजेशन होता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। देन म्यूकोसल फोल्ड क्या होता है, उससे हम कहते हैं प्लाइका। चौथा पॉइंट होता है इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम क्या होता है कि फीमेल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब होता है। देन वी हैव एडनेक्सा। एडनेक्सा का मतलब क्या होता है, ओवेरी प्लस फेलोपियन ट्यूब को हम कहते हैं एडनेक्सा। देन जेनेटल टीबी होता है। जेनेटल टीबी क्या होता है, मोस्ट कॉमन इफेक्ट्स द फेलोपियन ट्यूब। जेनेटल टीबी के अंदर एम्पुला सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है। इससे क्या हो सकता है, बायलेटरल कॉर्नुअल ब्लॉक। कॉर्नुआ क्या होता है, कॉर्नुआ होता है जो पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, मतलब पार्ट होता है यूटेरस का, जो फेलोपियन ट्यूब के साथ में लाई करता है, वो होता है कॉर्नुआ। तो इससे कॉर्नुअल ब्लॉक भी हो सकता है। एक होता है गोनोकोकल इन्फेक्शन। गोनोकोकल इन्फेक्शन क्या होता है, गोनोकोकल इन्फेक्शन हुआ तो इससे क्या होता है, फिमरियल ब्लॉक होता है। जो मैंने पढ़ा था फिमरियल पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब को, यहाँ पे भी ब्लॉकेज आ जाएगा। चौथा पार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ट्यूबल पैटर्न। अगर हमें कभी भी फेलोपियन ट्यूब देखनी होती है तो स्टेरोसेल्पिंगोग्राफी करते हैं। क्या करते हैं, स्टेरोसेल्पिंगोग्राफी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ट्यूबल पैटर्न। अगर हमें फेलोपियन ट्यूब की पैटर्न चेक करनी है तो हम स्टेरोसेल्पिंगोग्राफी करेंगे। साइट फॉर ट्यूबल लाइगेशन क्या होता है कि ट्यूबल लाइगेशन अगर आपको करना है तो मेनली अगर आपको हमने पढ़ा था कि स्टमस होता है वहाँ पे हम करते हैं, लेकिन अगर हमें स्टेरोस्कोपिक मतलब लेप्रोस्कोपी करेंगे तो हम स्टमस पे करेंगे, और स्टेरोस्कोपिकली करेंगे तो इंटरस्टिशियम में करेंगे। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली ट्यूबल लाइगेशन हम क्या करते हैं, स्टमस पे करते हैं वाया लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर। अगर हम स्टेरोस्कोपी से करेंगे तो इंटरस्टिशियम पे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है ओवरी। ओवरी कहाँ होता है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है और साइज 3x2x1 सेंटीमीटर होता है। वॉल्यूम 6 to 7 cc होता है। अगर मोर देन 10 cc हो जाता है तो उसे हम PCOS कहते हैं। लोकेशन कहाँ होता है, ओवेरियन फोसा ऑफ वोल्डेयर, जो कि लेटरल पेल्विक वॉल में होता है। कहाँ होता है, ओवेरियन फोसा ऑफ वोल्डेयर। हमने पढ़ा था कि वोल्डेयर रिंग होती है टॉन्सिल्स के अंदर, तो ऐसे याद कर सकते हैं ओवेरियन फोसा ऑफ वोल्डेयर। इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर ये एक एब्डोमिनल ऑर्गन होता है। देन विद द हेल्प ऑफ गुबर्निकुलम। गुबर्निकुलम क्या करता है, डिसेंट में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि टेस्टिस भी गुबर्निकुलम के हेल्प से नीचे आता है। फॉर एग्जांपल ऐसे ही टेस्टिस, फॉर एग्जांपल ओवेरी भी ऐसे ही नीचे आता है। देन अप्लाइड एस्पेक्ट क्या होता है कि जो यूट्रस होता है प्रिवेंट फर्दर डिसेंट ऑफ ओवरी। नीचे यूट्रस होगा तो फर्दर डिसेंट ऑफ ओवरी को प्रिवेंट करेगा। वो जो गुबर्निकुलम होता है वो डिवाइड होता है दो में। गुबर्निकुलम दो में डिवाइड होता है, वाया यूटेरस इनटू ओवेरियन लिगामेंट एंड राउंड लिगामेंट। तो हमने पढ़ा था राउंड लिगामेंट तो हम पढ़ ही चुके हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेबिया मेजोरा से इसकी अटैचमेंट होती है, कॉर्नुआ से इसकी अटैचमेंट होती है, और नया लिगामेंट आया ओवेरियन लिगामेंट। ये दोनों लिगामेंट किससे डिराइव होते हैं, गुबर्निकुलम से डिराइव होते हैं। हमने पढ़ा भी था कि राउंड लिगामेंट गुबर्निकुलम से डिराइव होता है। कहाँ पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था। राउंड लिगामेंट जो है गुबर्निकुलम से डिराइव्ड है, सैमसन्स आर्टरी सप्लाई करती है और कीप्स यूट्रस इन द एंटीवर्टेड पोजीशन। देन हम नीचे आ रहे हैं, पहले लिगामेंट रिलेटेड टू द ओवरीज। कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं जो कि ओवरी से रिलेटेड होते हैं। पहला होता है ओवेरियन लिगामेंट, दूसरा होता है इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट को हम सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी भी कहते हैं। मेनली क्या करता है, ये लेटरल वॉल से ओवरी को कनेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, ओवेरियन वेसल्स भी होते हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है। फिर नेक्स्ट फर्स्ट वन आता है ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट क्या करता है, ओवेरी को यूट्रस से कनेक्ट करता है। तीसरा आता है मीजो ओवेरियन। ये एक होता है ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट होता है, इतना पता होना चाहिए, इतना मेजर नहीं होता लेकिन होता है। देन रिलेशन ऑफ द ओवरी क्या होता है, ओवरी के सुपीरियर और एंटीरियर क्या होता है। ये मान लो ये हमारी ओवरी है, इसके सुपीरियर और एंटीरियर क्या होगा, ये होगी सुपीरियर और एंटीरियर। तो होता है एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी। क्या होता है, एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी, सुपीरियर एंड एंटीरियर। पोस्टीरियरली क्या होगा, पोस्टीरियरली होगा इंटरनल आइलिक आर्टरी। लेटरली क्या होगा, लेटरली होगा ऑब्स्टुरेटेड नर्व एंड इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। लेटरली मतलब लेटरली हमें पता होना चाहिए, जो हमने पढ़ा था कि ओवरी को जो लेटरल वॉल से अटैच करता है वो क्या होता है, वो होता है इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। जो हमने कहाँ पढ़ा था, जो हमने ये पढ़ा इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, ये जो हमने पढ़ा था।
तो 3 रिलेशन होते हैं, सुपीरियर एंड एंटीरियर जो होता है एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी, जो पोस्टीरियर होता है वो होता है इंटरनल आइलिक आर्टरी, जो लेटरल होता है वो होता है इन्फेंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। अगर लार्ज ओवेरियन मास है मतलब, तो ओवेरियन मास लार्ज है तो कहाँ जाएगा, लेटरली जाएगा। लेटरली क्या है हमारे पास में, ऑब्चुलेटेड नर्व भी साथ में, तो प्रेशर होगा ऑब्चुलेटेड नर्व पे, जिसके कारण क्या होगा, पेन फील होगा मीडियल साइड ऑफ थाई में। और मीडियली क्या होता है, ओवेरियन लिगामेंट होता है, जो कि ओवेरी को यूटरस से अटैच करता है। लेटरली इन्फेंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट होता है। अगर ओवेरियन मास लार्ज हो जाएगा तो ऑब्चुलेटेड नर्व प्रेस होगी, जिसके कारण मीडियल साइड ऑफ थाई में पेन होगा। देन ओवेरियन हिस्टोलॉजिकल फीचर्स क्या होता है, क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम। ओवरी के अंदर क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है, जिससे एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा होता है, और इसके नीचे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया भी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया मेनली ओवेरियन कोर्टेक्स होता है, जिसके अंदर फोलिकल होता है, और एक होता है मेडुला। कोर्टेक्स होता है, मेडुला होता है, कोर्टेक्स के अंदर फोलिकल होते हैं। मेडुला में क्या होता है, ब्लड वेसल होता है और हाइलाइट सेल होते हैं। तो मेनली ब्रॉड लिगामेंट के 3 पार्ट होते हैं, मीसोसेल्पिंग्स, मीसो ओवेरियम एंड मीसोमेट्रियम। मीसो ओवेरियम हम पढ़ चुके हैं, जो कि ओवरी का एक लिगामेंट होता है। मीसोसेल्पिंग्स मतलब फेलोपियन ट्यूब होता है। मीसोमेट्रियम मतलब जो एंडोमेट्रियम से रिलेटेड होता है। मीसोमेट्रियम मतलब यूट्रस, मीसो ओवेरियम मतलब ओवेरियन, मीसोसेल्पिंग्स मतलब फेलोपियन ट्यूब। तो ब्रॉड लिगामेंट के 3 पार्ट होते हैं। और मेडुला क्या होता है, मेडुला में 2 पार्ट होते हैं, ब्लड सेल होता है और हाइलाइट सेल होता है। हाइलाइट सेल क्या होता है, होमोलोगस टू इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस से होमोलोगस होते हैं। मेनली हाइलाइट सेल ट्यूमर हो जाता है ओवरी में, जो कि बहुत रेयर होता है, तो वो क्या करते हैं, एंड्रोजन को सिक्रेट्स करते हैं, और मैस्कुलाइनाइजिंग ट्यूमर ऑफ द ओवरी होता है। और ये एंड्रोजन को सिक्रेट करेगा तो मेनली मैस्कुलाइनाइजिंग फीचर्स दिखेंगे। तो ये एक पूरा ओवरी भी हमारा डिस्कस हो गया। तो एक बार वापस मैं ओवरी के बारे में बताता हूँ आपको। ओवरी क्या होता है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, साइज 3x2x1 सेंटीमीटर होता है, नॉर्मल वॉल्यूम 6 to 7 cc होता है। अगर मोर देन 10 cc हुआ तो ये PCOS का फीचर होता है। लोकेशन कहाँ होता है, ओवेरियन फोसा ऑफ वोल्डेयर्स में होता है, जो कि लेटरल पेल्विक वॉल में होता है। नॉर्मली इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ये एब्डोमिनल ऑर्गन होता है, लेकिन गुबर्निकुलम की हेल्प से नीचे पहुंच जाएगा। अप्लाइड एस्पेक्ट क्या होता है, जो गुबर्निकुलम होता है वो 2 में डिवाइड होता है, ओवेरियन लिगामेंट में और डाउन लिगामेंट के अंदर। लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स 3 लिगामेंट्स होते हैं। एक होता है ओवेरियन लिगामेंट, जो कि ओवेरी को यूट्रस से अटैच कराता है। इन्फेंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, जो ओवेरी को लेटरल वॉल से अटैच करवाता है। तीसरा होता है मीसो ओवेरियम, जो कि एक ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट होता है। ओवरी के रिलेशन होता है सुपीरियर एंड एंटीरियर, वहाँ पे क्या आएगा, एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी, पोस्टीरियरली आएगा इंटरनल आइलिक आर्टरी, और लेटरली आता है इन्फेंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, मीडियली आता है ओवेरियन लिगामेंट। अगर ओवेरियन मास बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, ऑब्चुलेटेड नर्व प्रेस होगी, उससे मीडियल साइड ऑफ थाई में पेन होगा। देन हिस्टोलॉजिकल फीचर्स क्या होता है, इसमें क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियम, और उससे एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा हो जाता है। ओवेरियन कोर्टेक्स होता है, मेडुला होता है, कोर्टेक्स में फोलिकल होते हैं, मेडुला के अंदर ब्लड वेसल होता है, हाइलाइट सेल होता है। हाइलाइट सेल क्या करता है, ये होमोलोगस होता है इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस से। मेनली इसका काम होता है एंड्रोजन, और बहुत अगर ट्यूमर हो जाता है इसका तो वो एंड्रोजन सिक्रेट करता है, और मैस्कुलाइनाइजिंग फीचर्स होते हैं फीमेल के अंदर। और मेनली एक ब्रॉड लिगामेंट होता है, ब्रॉड लिगामेंट के 3 पार्ट होते हैं, मीसोसेल्पिंग्स, मीसो ओवेरियम, मीसोमेट्रियम। तो मीसोसेल्पिंग्स होता है वो क्लोज टू फेलोपियन ट्यूब होता है, मीसो ओवेरियम जो होता है क्लोज टू ओवेरी होता है, मीसोमेट्रियम होता है क्लोज टू यूट्रस होता है। तो ये हमने पूरा ओवेरी पढ़ लिया। ये पहले फेलोपियन ट्यूब पढ़ा ही था। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, 4 पार्ट होते हैं, इंटरस्टिशियम, इस्थमस, एम्प्यूला एंड इन्फेंडिबुलम। एम्प्यूला क्या होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। इस्थमस क्या होता है, इसे हम फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये छोटा स्मॉल पार्ट होता है, नीरो पार्ट होता है, और एम्प्यूला वाइड पार्ट होता है। तो ये फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर भी होता है, और ये साइट ऑफ ट्यूबल लाइगेशन भी होता है। इसके ऊपर हमने पढ़ा था कि इंटरस्टिशियम होता है, ये नेरोएस्ट पार्ट होता है, इसको हम एनाटॉमिकल स्फिंक्टर भी बोलते हैं, और इंट्राम्यूरल पार्ट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये यूट्रस के अंदर लाई करता है। नॉर्मल लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है। फिर हमने पढ़ा था एंडेक्सा। एंडेक्सा क्या होता है, ओवेरी प्लस फेलोपियन ट्यूब को एंडेक्सा बोलते हैं। जेनेटिक टीबी एम्प्यूला को इफेक्ट करती है, दोनों को कोई इन्फेक्शन से फिम्ब्रियल ब्लॉक हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ट्यूबल पेटेंसी, मतलब फेलोपियन ट्यूब को देखने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस स्टेरोसेल्पिंगोग्राफी होती है। और साइट ऑफ ट्यूबल लाइगेशन क्या होता है,
इस्तेमाल होता है लेप्रोस्कोपिकली। अगर हम इसको स्टेरोस्कोपिकली कराएंगे तो हमको इंटरस्टिशियम में ट्यूबोलाइगेशन देना पड़ेगा। तो ये पार्ट हमारा पूरा हो चुका है। देन आगे का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।